Welcome students. Today we are going to continue with our chapter number 6 linear inequality in class 11, and today's topic is going to be solution of system of linear inequalities in two variable. So if you remember, in the last class we have understood the solution of linear inequalities in two variable, correct? But in that particular one all of the problems were having only one linear inequality, correct? So if you have more than one, maybe 2 or 3 or 4 or 5, that many number of inequalities present, then we call that as system of linear inequalities, correct है ना? In this particular means के we have more than one variables, or sorry, not variable, in this particularly we have more than one linear inequality will be available to solve the problem, correct? To understand this, let's take one example. एक example लेते हैं. Suppose we have to solve the following system of linear inequalities graphically, and the equations are x plus y greater than equals to 5 and x minus y less than equals to 3. I will call this as equation number 1 and I will call this equation number 2. How we are going to solve? तो मेथड इज टोटली सिमिलर टू द प्रीवियस वन, जो हमने एक लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व की थी इन टू वेरिएबल में. सेम मेथड, करेक्ट? फॉर दैट विल नीड अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, बट बिफोर आई ड्रॉ फॉर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आई वांट टू सॉल्व बोथ ऑफ दिस लीनियर इनइक्वालिटी, करेक्ट? हाउ कैन वी सॉल्व? सो फॉर फर्स्ट इनइक्वालिटी, पहले हम फर्स्ट इनइक्वालिटी की बात करेंगे, दैट इज x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5. And to solve, the first step is x plus y equals to 5. So we need at least minimum 2 solution, है ना, for this particular linear equation, correct? तो x0 y5 y0 x5 common चीज, correct? Once we get to know this, then we'll go for the second inequality. For second inequality, correct? So that is x minus y less than equals to 3. So it will become x minus y equals to 3. For this two solution will be 0 to minus 3, 0 to 3. Now according to this I have coordinate 0, 5, 5, 0 both on the positive x and y axis. This is negative y axis and positive x. So I don't need anything over here, है ना? इस साइड पे मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब ऐसे हो जाएगा इतने में, सिंपल. सो 0, 5 एंड 5, 0 फॉर दिस लाइन लाइक दिस. दिस इज 5, 0 एंड दिस इज 0, 5. फॉर दिस 2 पॉइंट दिस इज हाउ द लाइन. एंड अगेन हियर इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल टू साइन, दैट मीन्स स्लैक इनइक्वालिटी, एंड फॉर स्लैक इनइक्वालिटी द लाइन विल बी कंटिन्यूअस. Similarly for this 0, minus 3 and 3, 0. So maybe line will be like this, correct? So let's say here 3, 0 and here 0, minus. Now you may be thinking कि ये सर ऐसे, तो you have a proper dimension, आपको ग्राफ पेपर में बनाना है, correct? So on the graph paper you have a correct dimension. 1, 0 means 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit, 5 unit and so on. Same on the upper side and the lower side, correct? वो सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होगी because you are plotting in the graph. Now this is my second line. So to understand which line is which, so what I will do, I will put an arrow and I will write that particular line over here. X plus y equals to 5. Again यहाँ पे दूसरी, and this is x minus y equals to 3. Correct? So that helps us to understand which line is where. Correct? दोनों साइड पे एरो तो बनाना ही है क्योंकि this line is in this, मतलब बढ़ती रहेगी, है ना, indefinite है, सिंपल. चलो अब मेन कंसेप्ट वापस वही जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि फॉर 0, 0 मीन्स विल डायरेक्टली सॉल्व, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इफ आई टेक 0 और 0 इंस्टेड ऑफ x एंड y, करेक्ट? तो इस पर्टिकुलर पहली लाइन के लिए रीजन कौन सा आएगा, लोअर और अपर, फॉर दिस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी. तो x0 plus 0, 0 is greater than 5. Is it possible? No, पॉसिबल नहीं है. मतलब इसके लिए अपर रीजन ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसके लिए कौन सा रीजन आएगा, अपर रीजन, सिंपल. उसी तरह से इसके लिए सोचो, दिस इनइक्वालिटी, तो 0, 0 डेफिनेटली लेसर देन 3.
सो फॉर दिस इनइक्वालिटी, ये वाली लाइन के लिए रीजन ये ऊपर है ना. आई ट्राई टू शो यू समथिंग, प्लीज ध्यान देना. ये पहले रीजन ये मिला, दिस इज द रीजन वी गॉट फॉर दिस पर्टिकुलर लाइन, एंड फॉर दिस पर्टिकुलर लाइन हमें रीजन ये मिला. करेक्ट. अब इन दोनों रीजन में, बोथ ऑफ द इनइक्वालिटीज के रीजन में जो कॉमन रीजन होगा ना, कॉमन, दैट इज अवर सॉल्यूशन. दोनों इनइक्वालिटी में जो कॉमन रीजन होगा, द कॉमन बिटवीन बोथ ऑफ दिस, करेक्ट, दैट विल बी अवर आंसर. मीन्स दिस मच, ये रीजन और ये दिस मच रीजन, ये जो कॉमन रीजन है ना, दैट इज अवर सॉल्यूशन. करेक्ट. तो आप चाहो तो कैसे बोल सकते हो, तो कि फॉर इनइक्वालिटी 1 द अपर रीजन इज द सॉल्यूशन. वैसे बोलेंगे फॉर इनइक्वालिटी 2, है ना. इनइक्वालिटी 2 के लिए कौन सा आएगा, अगेन इसमें भी दो रीजन बने ना, तो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, ये अपर ये लोअर. सो इसमें भी इनइक्वालिटी 2 अपर रीजन इज द सॉल्यूशन. करेक्ट. तो फिर हमारा इन दोनों की वजह से जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या लिखेंगे हम, तो विल से thus the required solution of system of linear inequality is the common region of 1 and 2 shown by shaded region, है ना. अब यहाँ पे होता क्या है, तो इन एग्जाम व्हाट आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स के you just only show the shaded region which is common, है ना, this common one. This is just for your understanding. I have drawn both upper, this upper and then down. अगर आपको डिफिकल्टी हो, you may be thinking कि नहीं हमें बताना है, you can definitely show because you can use pencil, correct. तो हो सके वहां तक क्या करो कि पेंसिल से आप लोग शेड बनाओ ग्राफ पेपर पे. करेक्ट. इफ यू ड्रॉ अ शेड फॉर दिस अपर रीजन एंड दिस अपर रीजन, तो ये जो रीजन है ना वो ऑटोमेटिकली डार्क हो जाएगा. करेक्ट. ऑटोमेटिकली डार्क हो जाएगा एंड एनीवन कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ये जो डार्क है वो आपका कॉमन रीजन है एंड दैट इज योर सॉल्यूशन. करेक्ट. दैट इज हाउ यू कैन डू, है ना. पेन से या मार्कर से इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू शो लाइक दैट. करेक्ट. बट पेंसिल से आप डेफिनेटली कर सकते हो. डू लिटिल बिट ऑफ अ ब्लर सेक्शन, अच्छे से उसको रब करो. देन ऑन द अदर साइड जो कॉमन होगा वो ऑटोमेटिकली आपका डार्क दिखेगा. सो देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी टू अदर पर्सन जो आपका पेपर चेक कर रहा है, या चेकर को कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी टू अंडरस्टैंड कि दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन. करेक्ट. सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व, है ना. सिंपल सा काम है. पहले जब हम लोग एक इनइक्वालिटी सॉल्व करते थे फॉर 2 वेरिएबल, वैसे जितनी भी इनइक्वालिटी दी हो सारी सॉल्व करेंगे. एक ही ग्राफ के अंदर सबको कंबाइंड में प्लॉट करेंगे और उस पे से चेक करेंगे कि उन सब के थ्रू जो एक कॉमन रीजन होगा वो होगा हमारा सॉल्यूशन. Am I clear? है ना. You can pause the video and note it down. Now let's try to understand few problems from exercise 6.3. See, there are so many questions, I guess around 15-16. I will definitely solve 4 to 5 problems, not more than that, है ना. So to show you कि what kind of level of questions we can have. So let's start with the first one. Very simple and straightforward problem. It is given x greater than equals to 3 and y greater than equals to 2. Simple. यानी कि मेरे लिए x greater than equals to 3 is the first inequality and y greater than equals to 2 is the second inequality. Correct. So it will be x equals to 3 and y equals to 2. So I have to plot these two things on the graph. Simple. x equals to 3, 1 2 3. So x equals to 3 के लिए vertical line, y equals to 2 इसके लिए horizontal line. Now again both of the inequality has equal to sign, that is the slack. Correct. So it will be dark. Now to avoid confusion, let me say this is y
वाई डैश एक्स डैश और एक्स, सॉरी, करेक्ट. दिस लाइन इज x equals to 3, this line is y equals to 2. Simple. अब when I say x is greater than equals to 3, so what will be my region? So it will be more than 3 and equal to 3. So equal to 3 की लाइन जो है वो इंक्लूड होगी एंड उससे ज्यादा ऐसे this much. This is the region. Correct. For x greater than equals to 3, यानी कि on the right hand side. For y greater than equals to 2, this will be the region upper. Correct. So ये आ गया कॉमन रीजन. दिस इज अ कॉमन रीजन. तो कॉमन रीजन जो है वो आपका आंसर. नाउ यू नो द स्टेप्स, इसीलिए मैंने पहले एग्जांपल में आपको प्रॉपरली सारे डिटेल में स्टेप्स बता दिए, सो दैट आई डोंट हैव टू राइट अगेन ओवर एंड ओवर, है ना. इन दैट पर्टिकुलर यू कैन सी. अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा हो वापस से स्टेप लिखना, यू कैन रिवाइंड द वीडियो, वॉच दैट एग्जांपल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. करेक्ट. सो लेट्स गो फॉर द second, let's say third one. Third one says that 2x plus y greater than equals to 6. Let me say first one. Correct. And second one जो है वो मैं यहीं बाजू में लिख देता हूँ. So I will solve both of them parallel, है ना, बाजू बाजू में लिख के solve कर लेंगे. And second is 3x plus 4y less than equals to 12. This is my second one. Correct. Simple. अब आप लोग क्या करोगे तो कि भाई टू सॉल्व दिस हम बोल देंगे 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 एंड वी विल फाइंड टू सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन. करेक्ट. x0 y6 y0 x3, यहाँ पे कर देंगे 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12 एंड दैट विल कन्वर्ट लाइक दिस x एंड y. x0 तो y3, y0 तो x4, है ना. कितना इजी हो गया हमारे लिए प्लॉट करना ना, सॉरी फाइंड करना सॉल्यूशन. अब प्लॉट कर देंगे. सी आई कैन ऑब्जर्व नथिंग इज इन नेगेटिव साइड, सो मैं ग्राफ कुछ इस तरह से बनाऊंगा. कुछ भी नेगेटिव साइड पे नहीं है, दैट आई कैन इजीली अंडरस्टैंड y डैश y x डैश एंड x. करेक्ट. अब अगर कुछ नेगेटिव साइड नहीं है यानी ऑल द पॉइंट्स आर पॉजिटिव, तो पहले इस इनइक्वालिटी से जो हमने सॉल्यूशन ऑब्टेन किया वो लिख देते. 0 6 यहाँ पे होगा एंड 3 0, सो इट मे बी समथिंग लाइक दिस. लेट्स से 3 0 एंड 0,6. दूसरा है 0,3 एंड 4,0, समथिंग लाइक दिस. 4,0 एंड 0,3. इस तरह से आपको दोनों इक्वेशन से जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिले हैं उसको प्लॉट करके लाइन बनानी. अब जैसे इन द एग्जांपल आई टोल्ड यू कि राइट द इक्वेशन विद द लाइन एंड अगेन बोथ ऑफ देम आर स्लैग इनइक्वालिटी, तो ऑब्वियसली लाइन जो है वो कंटिन्यूअस रहेगी. ये इक्वेशन इस लाइन के लिए है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और ये वाली लाइन जो है वो इस इक्वेशन की है विच इज 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12. ये लिखना हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा. क्यों? बिकॉज इट इज इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई कौन सी लाइन कहाँ पे है एंड फॉर द चेकर ऑल्सो टू आइडेंटिफाई कि हाँ ये लाइन आपकी इस इनइक्वालिटी की है और ये लाइन जो है वो आपकी इस इनइक्वालिटी की है. करेक्ट. नाउ मूविंग फर्दर, हमें ये देखना है कि कौन सा रीजन फॉर दिस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी 1 अपर रीजन और लोअर रीजन. कैसे चेक करेंगे? अगेन विल सब्स्टिट्यूट 0,0. आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो सब्स्टिट्यूट 0,0 इन इक्वेशन 1. सो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, 0 ग्रेटर देन 6 विच इज फॉल्स. अब अगर ये फॉल्स है इसका मतलब कि 0,0 दैट इज ओरिजिन इज नॉट इन द सॉल्यूशन. उसके अपोजिट साइड, मतलब इस लाइन के रिस्पेक्ट में आपका अपोजिट साइड ये आएगा. करेक्ट. अपर रीजन. सिमिलरली यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे 0,0 इन इक्वेशन नंबर 2, इन इक्वालिटी 2. करेक्ट. तो इट विल बी 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 12. तो 0 तो 12 से छोटा होता है विच इज ट्रू, है ना. यानी कि इस लाइन के लिए नीचे का रीजन आएगा लाइक दिस.
सो फिर हमारा कॉमन रीजन कौन सा हुआ, इतना, ये दोनों लाइन जैसे एक्सटेंड करेगी वैसे वैसे हमारा ये कॉमन रीजन मिलेगा. दैट इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. ऐसे भी हमें शेडेड ही बताना है ना. वी आर नॉट सपोज टू राइट के दिस मच टू दिस मच और समवेयर टू समवेयर. सिंपली वी हैव टू शो इन द फॉर्म ऑफ अ शेडेड रीजन. तो हमें सिंपली ये कॉमन रीजन को इस तरह से लिख देना है. आर यू गेटिंग हाउ सिंपल द प्रॉब्लम्स आर. बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आप लोग आराम से कर सकते हो. डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल, है ना. You need just a practice. If you start practicing, I can guarantee you that all of you are able to solve this kind of a problem in a very very smooth way. Correct? है ना. चलो, you can pause the video and note it down. Let's have a look at next one. That is question number 8. I told you I will solve few problems only, so I'm directly jumping towards the 8. It is given as x plus y less than equals to 9. Y is greater than x. एंड थर्ड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ये तो पर्टिकुलरली आपकी y एक्सिस ही हो गई. हाँ, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मीन्स ऑल द वैल्यू ऑफ x विच इज ग्रेटर देन 0. सो 0 से बड़ी सारी वैल्यू, इसका मतलब के y एक्सिस के राइट हैंड साइड पे, है ना. तो उसके लिए अलग से कोई लाइन नहीं बनेगी. दैट विल बी ओनली y एक्सिस. यहाँ पे ध्यान दे, इसको बोल देंगे फर्स्ट वन, इसे बोल देंगे सेकेंड वन. अब x प्लस वाई इक्वल्स टू 9. तो अगर हम उसको सॉल्यूशन फाइंड करें तो आई विल बी गोइंग फॉर 9 एंड 0 9, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से मैं ग्राफ पे प्लॉट कर लूंगा. करेक्ट. अब जब इस इनइक्वालिटी को देखते हो तो यू कैन राइट समथिंग लाइक दिस, दैट y माइनस एक्स ग्रेटर देन 0. दोनों साइड पे x से सबट्रैक्ट कर दिया. करेक्ट. तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, यानी कि y इक्वल्स टू x. और y और जब x इक्वल होते हैं तो 1 1 2 2 0 0 इनफैक्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द सॉल्यूशन. ये हमें थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा. करेक्ट. चलो, एज आई कैन सी ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव ओवर हियर. तो मैं कुछ इस तरह से लाइन बनाता हूँ हमारी x एक्सिस और y एक्सिस. करेक्ट. 9,0 एंड 0,9 ये हो गई हमारी लाइन. ये 9,0 एंड 0,9. लेकिन दूसरी जो लाइन है वो है y इक्वल्स टू एक्स. दैट मीन्स इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन. प्लीज कंसिडर के ये ओरिजिन में से पास हुआ है. करेक्ट. एज यू कैन सी दैट मेरे पास जो है वो स्केल नहीं होती है, एंड आई ड्रॉ जस्ट रैंडमली, बट या यू कैन कंसिडर दैट इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. ये कौन सी लाइन है, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0. और ये वाली कौन सी लाइन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9. So for this particular inequality, I can utilize 0,0 to identify the region. Correct. तो 0 plus 0, 0, 0 is lesser than 9. Correct. मतलब इस लाइन के लिए ये नीचे का रीजन सही है. मतलब दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन फॉर दिस पर्टिकुलर लाइन इनइक्वालिटी. और इक्वल टू है, सो नो इश्यू. बट यहाँ पे ध्यान दो, अब इक्वल टू नहीं है. मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस लाइन को ब्रेक करनी पड़ेगी. सिंपल. हो गई ब्रेक. अब ब्रेक होने के बाद हमें ये चेक करना है कि अपर रीजन आएगा कि लोअर. तो अब यहाँ पे अपर और लोअर चेक करने के लिए आप 0,0 यूटिलाइज नहीं कर सकते, बिकॉज 0,0 इज इटसेल्फ ऑन द लाइन, है ना. सो हमें कोई और एलिमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा. जैसे कि मुझे पता है 1 1 2 2 3 3 सब आएंगे. तो अच्छा 1 1 यहाँ है, तो 1 2 यहाँ कहीं पे होगा ऊपर के रीजन में, है ना. इन दिस रीजन 1 2 विल बी देयर. सो 1,2 का मतलब कि 2 इज ग्रेटर देन 1. और अगर मैं बोलूं 2 ग्रेटर देन 1, इसका मतलब y ग्रेटर देन x सेटिस्फाइड, है ना. मतलब कि इस पर्टिकुलर के लिए रीजन कौन सा आएगा, ऊपर वाला. करेक्ट, है ना. यहां से भी है, ऐसे तो ऐसा नहीं है. ये रीजन सिंपल. अब एक और बाकी रह गया, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. तो मैंने पहले बोला कि इट इज द y एक्सिस. तो y एक्सिस के इस साइड का पूरा रीजन आएगा, समथिंग लाइक दिस. अब इन तीन में आई नो दैट आपको डिफिकल्टी लग रही होगी, बट मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं. दिस इज दिस रिक्वायर्ड रीजन. मैं ये हाईलाइट कर रहा हूं, लाइन कंटिन्यूअस नहीं बना रहा हूं, मैं ये हाईलाइट कर रहा हूं. ये देखो, नीचे वाली लाइन भी है,
ये इस लाइन से ऊपर वाली भी है और y एक्सिस से राइट हैंड साइड वाली भी है, ये तीनों तीन इस रीजन में मिक्स हो रही है. सो दैट इज अवर रिक्वायर्ड रीजन. आर यू गेटिंग द पॉइंट? So this is how we are supposed to solve. If the number of inequalities increase, that doesn't mean that problem gets difficult, but we need to make sure to solve all the inequalities and we have to plot the graph like this. Correct? Let me cover one more problem. In that particular one, I am going to take more than 3-4 inequalities, which is question number, let me say 14. है ना? 14 में बाप रे 4-5 है. 3x plus 2y less than equals to 15. ओह 150 थोड़ा बड़ा नंबर है. x plus 4y less than equals to 80. x less than equals to 15 and y greater than 0 मतलब greater than equals to 0 and x greater than equals to 0. So how many inequalities? 1, 2, 3, 4 and 5. ऐसा आप सोच रहे होंगे. And yes, definitely 5 is there. But अगर आप लास्ट दो inequality देखो, last two, that is y greater than equals to 0 and x greater than equals to 0. Those are nothing but x axis and y axis. y greater than equals to 0 का मतलब x axis होगा और x greater than equals to 0 का मतलब y axis होगा. वो दोनों तो ऑलरेडी हमारे लिए एक्सिस पे बन जाएगी. What these two inequalities suggest that whatever we have, it will be in the first quadrant. अगर कोई भी कॉमन रीजन आना है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अदरवाइज नॉट पॉसिबल. फर्स्ट फिलहाल इसे सॉल्व करते हैं. 3x plus 2y equals to 150. दो सॉल्यूशन x और y. अब ऑब्वियसली 150 इज अ बिग नंबर, तो हमें कुछ बड़े नंबर सोचने पड़ेंगे और वो बड़े नंबर्स के साथ साथ वी नीड टू ऑल्सो टेक केयर ऑफ द स्केल. एक्चुअली ये स्केल आपको हर एक प्रॉब्लम में लिखनी है. सी अब एस वी आर इन द 11th स्टैंडर्ड ना, हम 9th स्टैंडर्ड से ये चीज करते आ रहे हैं. सो आई जनरली डोंट टेल टू द स्टूडेंट्स के स्केल भी लिखनी है, अदरवाइज स्टूडेंट विल फील लाइक के सर हमें पता है, होशियारी मत मारो सर. करेक्ट, बट स्टिल एट सम पॉइंट आई हैव टू टेल, बिकॉज जिन्हें नहीं पता हो, जो शायद ऐसा सोच रहे हो कि स्केल नहीं लिखना है, so I can tell them yes, definitely हमें स्केल लिखनी ही है. This scale contains some mark, so please do that. अब यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर सोचने पड़ेंगे जिससे कुछ सिंप्लीफाइड वे में हम कर सकें, बिकॉज अदरवाइज द नंबर विल बी वेरी बिग. सपोज मैं x 0 ले लेता हूँ तो y 75 आएगा, और अगर y 0 ले लेता हूँ तो x 50 आएगा. ऐसे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस हम लोग ध्यान रखेंगे कि स्केल में 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट ले लेंगे, या 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, जैसे आप लोग को याद हो वैसे लिखना. करेक्ट. वैसे x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 80, सो डेफिनेटली हम लेस देन इक्वल्स टू तो लिखेंगे नहीं वापस, विल से इक्वल टू. इसके लिए दो सॉल्यूशन x एंड y. x 0, y 80 नहीं आएगा, हाँ सॉरी, y 0 लेंगे तो x 80 आएगा, बट x 0 लेंगे तो 80 by 4, 4 2 जा 8, 20, y 0 तो x 80. तीसरी लाइन जो है वो x लेस देन इक्वल्स टू 15 की है, तो वो हमारे लिए इतनी अभी फिलहाल मैटर नहीं कर रही है, मतलब मैटर डेफिनेटली करेगी, बट उसके सॉल्यूशंस फाइंड करने की इस तरह से जरूरत नहीं है. 0,75, 50,0. लेट मी ड्रॉ लाइक दिस. 0,20 and 80,0. Let me draw like this. This is 80,0. X plus 4y equals to 80, और यहाँ पे 0,20. This is 0,75 और यहाँ पे 50,0. करेक्ट. और ये जो लाइन है ये है 3x plus 2y डिग्री 150. सिंपल. इस तरह से हमें ये दो लाइन बना देनी है. अब जैसे ये दो लाइन रेडी हो गई तो इन दोनों का काम खत्म. x एक्सिस और y एक्सिस, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस ऑलरेडी हमारी रेडी है. अब x लेस देन इक्वल्स टू 15, मतलब x की जो वैल्यू है वो 15 या उससे छोटी रहेगी. सो लेट मी ड्रॉ अ लाइन समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे मैंने बोल दिया ये 15,0 यानी कि x इक्वल्स टू 15. 15 से छोटी यानी कि इस साइड का रीजन. करेक्ट. इन दोनों में भी चेक करना पड़ेगा. सो 0 + 0 लेस देन, मतलब इस लाइन से नीचे
इस लाइन से भी नीचे, क्यों? क्योंकि 0 + 0 <= 80 है, तो डेफिनेटली 0 80 से छोटा होता है, तो उसका भी नीचे। सो इन दोनों लाइन से, सॉरी ये लाइन और ये लाइन, उनके नीचे का रीजन ये हुआ, 15 से छोटा यानी इस साइड। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड रीजन। मैं अब रिक्वायर्ड रीजन ही बता रहा हूं, दिस इज अवर रिक्वायर्ड रीजन, है ना। आप सोचो कि ये रिक्वायर्ड रीजन कैसे हो सकता है ना। इस रिक्वायर्ड रीजन में ये लाइन तो कहीं पार्ट ले ही नहीं रही, तो आपको कैसे समझना है? सी दिस इज द लाइन, तो इसके नीचे का रीजन, तो नीचे के रीजन में तो नीचे ये सब आ ही गया ना, ये पूरा नीचे का रीजन, बोले वो लाइन वहां पे इन्वॉल्व नहीं हो रही है, करेक्ट। फिर इस लाइन के नीचे का रीजन x = 15 से छोटा, x एक्सिस और y एक्सिस, तो ये वाला रीजन जो है वो हमारा रिक्वायर्ड रीजन बनेगा। Are you getting me? So this is how we are supposed to solve, and that's where this kind of problems becomes bit important, correct? So again you can pause the video, and I guess pause करने से ज्यादा बेटर है कि मैं अब यहाँ पे क्लियरली बोल सकता हूँ कि आप बाकी के प्रॉब्लम्स जो है वो खुद से ट्राई कर सकते हो। Am I clear? So we will stop here only, है ना। I'm giving you the remaining problem to you to try. See, it is not difficult at all. There is no meaning for me to solve all the 15 problems for you on the board. What I believe is I have done enough so that you can try the remaining problems and get better at it. Correct? So definitely I'm going to stop here, and if you do understood then please push a like button so that मुझे feedback मिले कि हाँ आपको समझ में आया। And if you have not subscribed my channel yet, then it's a better time to, it's never a best time to do that. So you can do it anytime. Correct? And thank you so much for watching.